نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین اور سامعین، آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل باغ مومن میں خوش آمدید ہے اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم لوگ اپنے باغ یعنی کہ باغ مومن میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو ہمارا اس وقت جو چل رہا ہے، جو سلسلہ وار ہم جس بارے میں جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی ایک بہترین کہہ لیا جائے کہ رحمت، ایک بہترین معجزہ، ایک بہترین رہنمائی، ایک بہترین جو روشن کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن رحیم، قرآن حلیم، دیگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی کتاب کو جس رحمت میں اور جس طریقے سے عمدہ جس نام کے ساتھ ہم کہیں اتنا بہتر ہے، بلکہ اس کی عظمت کا حقیقتاً دیکھا جائے تو اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم ایک مقصد کے ساتھ اس چینل پہ آتے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب پر چند گفتگو، چند باتیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہماری اور تمام سننے والوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے، آسانی فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، ہدایت سے نوازے. آمین ثم آمین. تو برادران، ہم لوگ قرآن پاک کے سلسلہ وار ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. سورہ ابراہیم کی بھی آیت نمبر 35 تک ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں غور و فکر کیا. اب اس کے آگے یا پھر ہم 35 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہاں تک ہم لوگ پہنچتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سننے والوں کے دلوں میں قرآن کے لیے جذبات، بے شک آپ کا سننا اور اس پہ وقت دینا یہی ایک اظہار ہے کہ آپ کا قرآن کی طرف کس قدر دلچسپی ہے اور جذبات آپ کا جڑا ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور دعا یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ بنی رہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، انہیں بھی یہ چینل پہ جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں شیئر کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ اس پر غور و فکر کریں اور وہ اوروں کو بھی شیئر کریں. من جملہ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے، آپ کے اور آپ سے اور تمام لوگوں تک پہنچے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی اس کوشش سے شاید کسی کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت، رہنمائی ثابت ہو، اور کسی کے رہنمائی میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب ایسا بناتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، نہایت ہی کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں مصروف رکھے اور ہمیں ہدایت سے نوازتا رہے، ہمیں اپنے طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. آمین. محترم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ. ربی یسر وتوسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو پڑھی اور دیکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام نعمت، اپنی رحمت جو اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، اس پر مختصر میں اس نے بیان کیا ہے، کہا ہے. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد دلا رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کس طرح کے نیک انسان، نیک بندے، اللہ کے بندے تھے، جن پر اگر ہم ان کے سیرت پر بہت مختصر میں بھی بیان کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جیسا ہونا واقعی میں ایک کہہ لیا جائے کہ ایک بہت بڑا کام ہے. یعنی کہ آج کے دور میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس قدر نیک بندے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنی نبوت سے نوازا اور اپنا خلیل بنایا. تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر بت پرستش عام تھی، بلکہ ان کے والد ہے نا، ان کے والد جن کا جو ہے کہ اصل نام تاریخ تھا شاید، اور جن کو عابر ان کا نک نیم تھا اور عابر سے وہ جانے جاتے تھے. اور یہ عابر جو تھے کہ یہ خود بھی جو ہے نا کہ بت تراشتے تھے یا خود بت کو بناتے تھے اور اس کا فروخت کرتے تھے، یعنی کہ اس کو بیچتے تھے اور پھر اس کی
इबादत हुआ करती थी और वो खुद भी बुतों की इबादत करते थे। अब वो एक काफ़ी ज़्यादा बुतों से वो बहुत ज़्यादा जो है कि उनको मोहब्बत थी या बहुत ज़्यादा उनको उस पर यकीन था। बहरहाल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबकि बहुत छोटे ही थे, उसी वक्त जो है कि उन्होंने गौर किया उस जगह पे जहाँ यानी कि बाबुल में जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं कि इबादत करते हैं बुतों की, ठीक है ना। और फिर उन्होंने देखा कि चाँद की, सितारों की, तारों की, है ना। तो वो बचपन से ही उनका जहन ऐसा था कि वो बड़ा फिक्र करते थे कि यार ये जो परस्तिश हो रही है, तो उनके अंदर बचपन से उनके अंदर ये एक क्वेश्चन होता था कि ये हमारे खुदा हैं, ये बुत जो ऐसे सामने खड़े हैं, क्या ये हमारे खुदा हैं? क्या ये हमारी जो भी मांगे हैं सुन रहे हैं? वो देखते थे कि उनके सामने खाने की चीज़ें रखी है मगर खाते नहीं हैं। वो देखते थे कि कुछ उनसे कहा जाए तो वो सुनते नहीं। दीगर उनके दिमाग में कई तरह के सवालात हुए। इसी तरीके से सवालात ये हुए कि अच्छा ये सूरज की इबादत होती है तो सूरज तो शाम में ढल जाता है, दिन में तो चमकता दिखता है मगर शाम में फिर खुदा कहाँ चला जाता है। उनके अंदर ये क्वेश्चन होता था कि खुदा तो है, दिन में है, फिर शाम में खुदा कहाँ गया? पूछते थे लोगों से कहाँ गया। फिर उन लोगों से सवाल किए जो लोग चाँद की इबादत करते थे कि चाँद तो बेहतर ठीक है मगर ये क्या हुआ, दिन में कहाँ चला गया? फिर ये चाँद कभी छोटा हो जाता है, कभी और छोटा और कभी गायब। इसी तरीके से सवालात उनके जो है कि खुद से भी होते थे और वो लोगों से भी पूछते थे कि भाई ये कैसा खुदा है कि हम इनकी परस्तिश करें, हम इनकी इबादत करें, ये तो कभी हैं कभी नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं, ये तो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। और इन्हें तो खुद मेरे वालिद, मेरे अब्बा जो है कि तराशते हैं, बनाते हैं, वो किस किस तरीके से बनाते हैं हमने देखा है। तो उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये तो खुदा इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक वो मालिक है पूरे कायनात का, मतलब पूरे कायनात का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह को तो हर चीज़ मालूम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना और उनको खलील बनाना ये भी उनको मालूम। तो अल्लाह की तरफ उनको इस जो नज़दीकी देखे, उनके अंदर जो सोच फिक्र देखे और जो हक़ को तलाश करने की क़ुव्वत देखे और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस तरीके से हक़ पर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए देखे और उनके दिल के अंदर की जो खुसूसियत थी, जो खूबी थी, जो सवालात थे, इन तमाम चीज़ों को देखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपने नबूवत से भी नवाजा और रिसालत से भी नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ की पहचान हो गई, हक़ की पहचान हो गई। वो समझ गए कि खुदा कौन है। खुदा तो वाहिद एक है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पूरे कायनात का मालिक है, रब्बुल आलमीन है। तो उन्होंने फिर अपने वालिद साहब को भी समझाया, अपने वालिद को भी बताया कि अब्बा आप जिनकी परस्तिश करते हैं, क्या ये सुन सकते हैं? क्या ये कुछ बोल सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? तो वालिद तो भाई जो है कि बुत के बड़े पुजारी थे, वो जो है कि अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्ती से जवाब देते, बल्कि बाज़ वक़्त उनको कहते हैं कि उन पर मतलब कि सख्ती करते और कहते कि क्या कह रहे हो। बहरहाल बहुत लंबा वाक़या है, पूरे सीरत पर अगर हम जाएँ तो बहुत लंबा वाक़या है। इंशाअल्लाह फिर कभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो दीगर हम बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं कि फिर उनको जो है कि उन्होंने साबित भी किया कि देखो ये बुत कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उनको जो है कि आग में डाला गया और आग जब बनाई गई तो जनाब आग करीब 1 मील के बड़े से बाग में जो है कि बाकायदा चारों तरफ से बाउंड्री कर करके उसमें महीनों जो है कि उसमें लकड़ियाँ जुटाई गई और लोगों का लकड़ियों जुटाने पर ऐसा अकीदा था कि वो लोग मन्नतें करते थे कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ उसमें डालूंगा, फलां काम हो जाएगा तो इतना डालूंगा। बहरहाल तो उसमें जो है कि 1 माइल के डिस्टेंस पर पूरी लकड़ियाँ तैयार की गई उनको आग में डालने के लिए, है ना। और उसके बाद जो है कि उनको मंजनीक से उस आग में डाला गया। जबकि उनके बदन का कपड़ा उतार दिया गया था, वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते आकर के बोले कि आप कहें तो मैं जो है कि इनको एक बार में ख़त्म कर देता हूँ, आप कहें तो मैं बारिश बरसा देता हूँ, आप कहें तो मैं ये पहाड़ को इनके बीच में गिरा देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहें कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरा अल्लाह देख रहा है ना, मेरा अल्लाह जान रहा है ना, मेरा अल्लाह को मालूम है ना, तो बस मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो बेहतर कारसाज है। बस मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतर कारसाज है। तो जनाब जो है कि उनको आग में फेंका जाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि आग को हुक्म करते हैं कि ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए तो ठंडी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में उनको डाल दिया गया, वो आग में है मगर आग की मजाल नहीं थी कि उनको तकलीफ पहुंचा सके, उन्हें जला सके। और हाँ, उनके हाथ में बंधी रस्सियाँ तो जल गई मगर उनको आग का एक ज़रा सा भी असर ना हुआ। बाहर में लोग देख रहे हैं, बाहर में लोग
चारों तरफ लोग जो खड़े तमाशाबीन बन करके देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। उसमें वो वालिद भी हैं, माँ भी हैं। बहरहाल काफ़ी दिन तक उसमें रहे। बाद वक्त पे कॉल होता है कि 40 दिन या उससे ज़्यादा दिन। उसके बाद फिर जब कुछ ना हुआ, वो आग से वापस चले आए, ठीक है ना। उसके बाद फिर नमरूद का वाक़या पेश होता है। नमरूद के सामने हाजिर हुए। नमरूद ने उनसे पूछा कि तू किस खुदा की इबादत करता है। नमरूद का तो कहना था कि मैं खुदा हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि मैं उस खुदा की पूजा करता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ तो है कि सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबाता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो जिलाता है और मारता है। तो नमरूद जो है कि कैद खाने से 2 को बुलाता है और कहता है कि देखो, इसको मरने की सज़ा मिली है, इसको कल फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मैंने इसकी सज़ा को माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, और उसको आज़ाद कर देता है। और नमरूद कहता है कि देखो, मैंने इसको ज़िंदगी दे दी। और दूसरा कैदी था जो बेगुनाह था, बेकसूर था, जिसको आज़ाद करने की बात थी, नमरूद उसको तलवार उठाता है और उसको कत्ल कर लेता है। कहता है कि देखो, मैंने इसे ख़त्म कर दिया, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं हूँ खुदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको इस नादान दिमाग या फिर उसे कह लिया जाए कि उसके अंदर की जो गुरूर था उसको समझ लिए, और उन्होंने कहा कि मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। अगर वाकई में तू खुदा है, खुदा की ताकत रखता है, तो एक दिन के लिए जो है कि मगरिब से निकाल दे और मशरिक में डुबा दे। नमरूद के पास कोई जवाब ना था, वो खामोश हो गया। बहरहाल उसने जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ शहर बाबुल से निकल करके शाम की तरफ वो हिजरत किए। उनके साथ उनकी बीवी सारा रज़ियल्लाहु तआला भी थी, और उनके अपने एक भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, चचेरे भाई थे शायद। तो बहरहाल आगे जाने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता बदल दिया, दूसरी तरफ वो चले गए, सदूम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना सफ़र आगे बढ़ाए। मिस्र से होकर के उनको गुजरना था। उस दौर में मिस्र का बादशाह बड़ा ही जालिम था, और वो बादशाह का मामला ये था, हम लोगों ने अगर हिस्ट्री पर पढ़ी होंगी तो हर कोई जानता होगा कि एक बादशाह गुजरा है जिसका ये कहना था कि जो कोई भी औरत की शादी हो तो पहला सुहाग रात यानी कि फर्स्ट नाइट वो हमारे साथ मनाएगी, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मेरा हक पहले है, उसके बाद मेरी रियाया का है। और वो इस तरीके से हर औरत जिनकी शादी होती है या शादीशुदा होती हैं उनको वो अपने महल में बुला लेता था, अज़म करता था। बहरहाल तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर के उस शहर से गुजरे तो उनको मालूम हुआ ये बातें। तो बहरहाल उस बादशाह का जो है कि सिपाही हज़रत बीवी सारा को भी लेके गया इसी इरादे से, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम देखिए, बीबी सारा ने अल्लाह की पनाह लिए और कसम दी, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। ऐसी हिफाजत फरमाई कि वो जो बादशाह था मिस्र का, उसके ऊपर खौफ जारी हो गया। इस कदर वो खौफ में आ गया कि जब आगे बढ़ता पैर उठाता बीबी सारा की तरफ, उसका पैर जो है कि ज़मीन में धस जाता, मानो उसके पैर में जान नहीं, पैर आगे बढ़ता ही नहीं। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, जब नहीं नाकामयाब रहा तो समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। उसको खौफ हो गया कि ये कोई जिन है। बहरहाल उसने जो है कि अपने महल की एक और जिसको उसने पकड़ लिया था, बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हालांकि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी किप्तिया थी, यानी कि मिस्र की ही थी, और वो किसी बड़े बाप की बेटी थी, मगर नमरूद जुल्म का नमरूद कह रहा, माफ़ कीजिएगा, तो रोज़े में हो, ख्याल रखिएगा, हो सकता है कहने बोलने में गलतियाँ हों या कुछ ज़बान फिसल जाए तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा। बहरहाल तो जो वो बादशाह था ना, उनको भी उठाया हुआ था, उनको भी उठा लिया था, महल में बुला लिया था। बहरहाल मगर उसके साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि वो बड़े बाप की बेटी थी, वो पाक दामन थी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है कि वो बादशाह जो है कि खौफ के मारे बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना कि सिर्फ आज़ाद किया, बल्कि उनके साथ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त उस बादशाह के यहाँ एक कैदी थी, उनको जो है कि कनीज़ बना करके बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भेज दी। तो बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो है कि वापस आ गई अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। तो तमाम बातें हुई। बहरहाल अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत मजीद बताऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम अपने मौजूद से हट जाएंगे। तो जो है कि ये वाक़या हुआ, और उसके बाद जो है कि उस वक्त जो है कि बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कोई औलाद नहीं थी, बल्कि वो बांझ थी, एक तरह से बांझ थी, उनको औलाद नहीं हो सकती थी। तो जो है ना कि बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ही खुद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहें कि आप जो है कि हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह कर लें, शायद कि अल्लाह जो है कि इनसे आपको औलाद नवाज दे।
اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا.